Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all would be doing great. So today we are here with another lecture which is about Hamlet. We are going to discuss plot summary of Hamlet. It's a tragedy written by Shakespeare. First of all, we will see the character sketch of Hamlet, then it would be easier for you to understand the summary. Now let's see the character sketch of Hamlet. First of all, we have Hamlet, who is the Prince of Denmark. His uncle's name is Claudius. His mother's name is Gertrude. His father's name is also Hamlet, but he has died before the play begins. He has his best friend named Horatio. There is a courtier on the court of Hamlet whose name is Paulinus. Paulinus' daughter's name is Ophelia, who is the lover of Hamlet, and Polonius' son's name is Laertes. Hamlet had two friends who were his friends from his school time period, Rosencrantz and Guildenstern. अब इस पूरे कैरेक्टर स्केच से हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे. That is the Prince of Denmark. Gertrude, his mother, marries Claudius, who is his uncle, but Hamlet is not happy on this. His father died before the play begins, as I told you. The play begins with a ghost who appears to some soldiers at the beginning, and they become frightened after seeing the dead ghost because he looks like Hamlet's father, the died king. The soldiers decides to tell the whole story to Hamlet so that he may take the action. On the other hand, Claudius says to Hamlet that he must stop being sad about the death of his father and become a normal person. He says to Claudius that he will try his best to be a normal person. बट ही इज़ नॉट हैप्पी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो अपनी माँ की शादी जो कि क्लॉडियस से हो चुकी है उसकी वजह से हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है. पोलिनियस, लेट्रस एंड ओफीलिया. अब हम देखते हैं ये तीनों कौन है. Ophelia's brother Laertes and his father Polonius advises her to keep herself away from Hamlet, and they say that he will not marry her because he is a king. He will only seduce her, so she must keep a distance from Hamlet. And Ophelia says that she will do as his father and brother said. King Hamlet's murder. The ghost appears to Hamlet itself by telling him the story of his murder. He tells Hamlet that how his uncle poured some poison in his ear while he was sleeping, so he died. Listening the story, Hamlet becomes so upset, and he decides to take revenge from his uncle. Hamlet makes a plan to be a crazy person so that everyone thinks he has gone mad. So in this way, he can reach to the truth. वो जान सकेगा कि that how his father died or who killed his father. Although the ghost itself is saying that he has been murdered by his uncle, but Hamlet thinks that maybe the ghost is a devil liar who may be lying. So he thinks कि मैं जो हूँ वो अब एक क्रेज़ी पर्सन की एक्टिंग करता हूँ ताकि जो है वो डिसाइड करता है अपने सोल्जर्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, होरेशियो के साथ, कि मैं जो हूँ एक पागल इंसान की तरह कुछ हरकतें करूँगा तो सब समझेंगे कि मैं पागल हो चुका हूँ, और फिर इसी वजह से जो है वो मैं अपने फादर की डेथ तक का सुराग लगा सकूँगा, क्लू ले सकूँगा कि सच बात है कि क्लॉडियस ने उसको मारा भी है कि नहीं. ठीक है. अच्छा जी, ओफीलिया के साथ उसकी जो उसका क्रश था ओफीलिया पे हैमलेट का, तो जब ओफीलिया के फादर ने कहा और ब्रदर ने कहा डैट ही विल नॉट मैरी यू बिकॉज ही इज़ अ प्रिंस, सो शी कम्स टू हैमलेट टू रिटर्न हिज लेटर्स. बट हैमलेट उस टाइम पे उससे बड़ा ही क्रेज़ी वे में बिहेव करता है, और ये सारी सिचुएशन जो है वो कौन देख रहा होता है? पोलिनियस, गर्ट्रूड, क्लॉडियस. तो पोलिनियस क्या समझता है कि मेरी बेटी ने उसको रिजेक्ट किया, दैट्स वाई ही हैज़ गॉन मैड बिकॉज ऑफ हिज रिजेक्शन. अच्छा, क्लॉडियस
और गर्ट्रूड बड़े ही अपसेट हैं इसके इस बिहेवियर पे हैमलेट के कि डेट वाई ही इज़ एक्टिंग लाइक अ क्रेजी पर्सन, वाई ही हैज़ गॉन मैड. सो दे डिसाइड टू send two friends of Hamlet, Rosencrantz and Guildenstern, uh, to see the activities of Hamlet, that why he is acting like a mad person. Both of them advises Hamlet टू बी अ चिल पर्सन. वो उसको कहते हैं कि तुम ज़रा चिल हो जाओ, अपने आप को इस टेंशन से बाहर निकाल दो. वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट दैट यू आर बिहेविंग लाइक अ क्रेजी पर्सन, मैड पर्सन. परफॉर्मेंस होगी प्ले की तो तुम उसको देखने चल जाओ, यू विल फील बेटर. सो एट दैट टाइम हैमलेट स्टार्ट थिंकिंग. He thinks that he will act a perform which will mimic the death of his father. Then he will see the reaction of Claudius. If he will react to that play, then it would be clear to Hamlet that he is murderer of his father. ओफिलिया को भेजते हैं हैमलेट के पास कि जाओ उससे मिलो एक दफ़ा. तो वो हैमलेट जो है उस पर बड़ा इंसेन एक्ट करता है और उसको कहता है कि जाओ गो एंड बी अ नन. द माउस ट्रैप प्ले. अब ये जो है रात को डिसाइड हुआ होता है ना कि वो लोग जाएंगे. अब ये जो है रात को डिसाइड हुआ होता है ना कि वो लोग जाएंगे, एक्ट परफॉर्म हो रहा है और वो सब लोग उसको जो है उस परफॉर्मेंस को ज्वाइन करेंगे जाके. तो उस टाइम पे क्या होता है, परफॉर्म करवाता है वो एक्ट इन फ्रंट ऑफ क्लॉडियस कि क्लॉडियस अब इस पे क्या रिएक्शन देगा इस पूरे प्ले के ऊपर जो कि मिमिक कर रहा है उसकी फादर की डेथ को, कि हाउ अ पर्सन इज़ मर्डर्ड बाय पोरिंग पॉइजन इन हिज ईयर. तो इस टाइम पे जो क्लॉडियस है वो बड़ा अपसेट हो जाता है और उस रूम को लीव करके अपने रूम में चला जाता है. क्लॉडियस ट्राइज टू प्रे. ठीक है, क्लॉडियस अपने रूम में आ जाता है और वहाँ आके वो प्रे करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज ही इज़ रिपेंटिंग ओवर हिज सिन. क्लॉडियस के पीछे जो है वो हैमलेट आता है और हैमलेट कहता है कि मैं इसको अब मार दूंगा क्योंकि इसने मेरे फादर को मारा. क्योंकि ये चीज़ उसको क्लियर हो गई है, क्योंकि जब उसने वो देखा ना कि प्ले परफॉर्म किया गया है और क्लॉडियस जो है वो अपनी जगह से उठ के वहाँ चला गया और घबरा गया, तो उसको यकीन हो जाता है कि डैट ही इज़ द मर्डरर ऑफ हिज फादर. बट हैमलेट क्या है वो उसको मार नहीं पाता. क्यों? बिकॉज ही बी रिलक्टेंट परसेप्ट अंडर द सिचुएशन ऑफ टू बी और नॉट टू बी. वो सोचता है मैं कम करूँ ना करूँ, और सोचता है कि अगर मैं जो हूँ इसको मार देता हूँ इस टाइम पे मैं दुआ कर रहा है, अगर ये दुआ करता हुआ मरेगा तो ही विल गो स्ट्रेट टू हेवन. सो वो तो चाहता ही नहीं है कि वो उसको इस हालत में मारे, तो वो क्या करता है उसको वहाँ से छोड़ के चला जाता है, उसको मारता नहीं है, जो कि उसके पास बहुत अच्छा मौका होता है. ठीक है. हैमलेट स्टेप क्लॉडियस थ्रू द एरर्स. अच्छा, हैमलेट जो है वो उसके बाद अपनी मदर के पास जाता है जो कि उनकी बातें सुन रही होती है. तो वो समझती है कि वो डर जाती है कि ये तो उसको मारने चला गया है, कि इसको ये तो पागल हो चुका होगा, पता नहीं अब ये क्या करेगा. तो वो हेल्प के लिए बुलाती है. उतनी देर में जो है पर्दे के पीछे, टेपेस्ट्री के पीछे वो होता है, पॉलिनस होता है, जो कि देखने आया होता है हैमलेट को, क्योंकि वो समझता है कि मेरी बेटी की वजह से ये पागल हुआ है. तो हैमलेट को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो समझता है जो है वहाँ पर जो है क्लॉडियस उनकी बातें सुन रहा है, तो वो बिना देखे अपनी स्वॉर्ड से उसको मार देता है. Then he comes to know that he was not Claudius, he was Paulinus. He unintentionally kills Polonius. उसके बाद हैमलेट अपनी मदर को एक्यूज़ करता है डैट वाई ही मैरिड हिज अंकल. उसको लगता है इसकी मदर को पता है कि वो कैसे उसके फादर को मारा गया, हालांकि गर्ट्रूड उस बारे में कुछ भी नहीं जानती होती और वो बार बार अपनी मदर को एक्यूज़ करता है फॉर मर्डर. बट गर्ट्रूड थिंक्स दैट ही हैज़ गॉन मैड, दैट्स वाई ही इज़ टॉकिंग लाइक दिस. और जब अपनी मदर को बार बार एक्यूज़ कर रहा होता है तो वो उसको ये भी कहता है कि नाउ यू विल नॉट स्लीव विद दैट पर्सन. During that time, the ghost appears again to Hamlet, but Gertrude could not see that Hamlet see the ghost. तो वो ghost जो है वो Hamlet से कहता है कि why are you taking so much time to take revenge? You must do hurry. Gertrude thinks that his son has become actually and he gets frightened. Hamlet drag the dead body of पोलिनियस और उसको ठिकाने लगा देता है. ठीक है. अच्छा, इस पूरे सीन के बाद जो है
क्लॉडियस हैज़ बिकम फियरफुल, और क्लॉडियस सोचता है कि अब जो है हैमलेट उसके लिए एक थ्रेट है फ्यूचर के लिए, तो वो डिसाइड करता है टू सेंड हिम टू इंग्लैंड फॉर हिज स्टडी। वो कहता है कि तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारो, और यहाँ पे ये खुद भी सेव हो जाएगा, क्योंकि अब उसको थ्रेट है ना हैमलेट से कि ये किस तरह, इसको कैसे पता लग गया कि इसके फादर की डेथ इस तरीके से हुई है। अच्छा, वो एक प्लॉट बनाता है, प्लॉट जो है प्लान करता है, जिसमें वो उसको वहाँ भेजता है। भेजने के बाद एक लेटर भेजता है रोज़नक्रेंट्ज़ और गुलिस्टन के हाथ किंग ऑफ इंग्लैंड को, कि जैसे ही हैमलेट वहाँ पहुँचेगा इंग्लैंड उसको जो है वो मार दिया जाए, ठीक है। ओफिलियास मैडनेस एंड लेट्रियस रिटर्न। जब ओफिलिया को पता लगता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, मर्डर किसने कर दिया है, हैमलेट ने, तो वो क्या होती है, पागल हो जाती है, और उसका उतनी देर में उसके भाई को भी जब ये न्यूज़ मिलती है तो वो वापस आ जाता है। एक्चुअली बिकम्स मैड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, आफ्टर द मर्डर ऑफ फादर। लियट्रियस वापस आता है और कोर्ट में बड़ा हंगामा मचाता है, अपने साथ अपने फॉलोअर्स को लेके आता है कि डैट हैमलेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर, सो ही विल टेक रिवेंज फ्रॉम Hamlet. Because Hamlet has been sent to England, so Claudius could not take revenge. हैमलेट इंग्लैंड पहुंचता है तो उसने वो वापसी वहीं पे ना 2 लेटर्स लिखता है, एक लिखता है क्लॉडियस को, एक लियर्टिस को, और एक होरेशियो को। होरेशियो को बताता है कि डैट ही इज़ सेफ, हिज शिप वाज लूटेड बाय पायरेट्स, बट ही वन वे और द अदर मेक हिज वे टू सेव हिज सेल्फ। अब वो बिल्कुल ठीक है। वो क्लॉडिस को बताता है डैट ही इज़ रिटर्निंग बैक, और लियर्टिस को भी बताता है कि वो भी वापस आ रहा है। ओफिलिया जो है, बाद में अगले सीन में पता लगता है कि ओफिलिया ड्राउंड एंड डाइड। ओफिलिया का फ्यूनरल है, जिस तब तक जो है हैमलेट भी वापस आ चुका होता है। जो ग्रेव डिगर है ना, वो हंस रहा होता है, बातें कर रहा होता है, तो हैमलेट पास से गुजरता है, उसको नहीं अभी तक पता कि ओफिलिया जो है वो मर चुकी है, ठीक है। जब ओफिलिया का फ्यूनरल आता है, गर्ट्रूड भी साथ होती है, क्लॉडियस भी है उसमें, भाई लियर्टिस भी है, तो हैमलेट उसी रास्ते पे होता है, और हैमलेट देखता है कि यहाँ तो फ्यूनरल है किसी का, और जब वो देखता है कि उसको ग्रेव में डाल दिया गया है ओफिलिया को, तो उसका जो भाई लियर्टिस है वो ग्रेव में जंप करता है और एक दफ़ा अपनी बहन को दोबारा गले लगाता है। ही इज़ सो सैड ऑन द डेथ ऑफ हिज सिस्टर। तब जो है पता लगता है हैमलेट को डैट इट्स द फ्यूनरल ऑफ ओफिलिया। ही गेट्स सो अपसेट एंड स्टार्ट वीपिंग, और ये कहता है कि नो वन कुड लव ओफिलिया मोर देन ही। तो उस टाइम पे लियर्टिस और हैमलेट की आपस में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, लेकिन उन दोनों को भी छुड़वाते हैं सारे लोग मिलकर कि ये वक्त नहीं है लड़ाई करने का। रोज़नक्रेंट्ज़ एंड गिल्डस्टन आर डेड। अब रोज़नक्रेंट्ज़ और गिल्डस्टन तो गए थे इंग्लैंड इसके साथ, हैमलेट के साथ। अब दोनों वो कैसे मर गए? हुआ कुछ यूँ था, जब पायरेट्स ने हमला किया था इनकी शिप पे, तो हैमलेट तो बच गया था, ठीक है। हैमलेट ने क्या किया था, किसी तरह वो लेटर देख लिया था और उस लेटर को अपने नेम से रिप्लेस करके इन दोनों का नाम लिखवा दिया, रोज़नक्रेंट्ज़ और गिल्डस्टन का, कि इन दोनों को जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, और हैमलेट जो है वो बच के वापस अपने डेनमार्क में, अपने लैंड में आ जाता है। द फेंसिंग मैच। अच्छा, जब ये सारी बात हो जाती है तो एक फेंसिंग मैच रखा जाता है, जिसमें एक ऑस्ट्रिक नाम का कॉर्टियर आके बताता है कि एक फेंसिंग मैच होगा जिसमें इनवाइट किया जाता है हैमलेट को और लियर्टिस को, कि दोनों जो हैं वो किंग और क्वीन के सामने लड़ेंगे, और अपनी जो है अब दोनों के दरमियान जो एक जंग हो चुकी है, क्योंकि उसके फादर को भी मार दिया और उसके फादर के ग्रीफ की वजह से उसकी बहन भी मर चुकी हुई है। तो अब वो दोनों के दरमियान एक मैच होगा, और जो जीतेगा वो ही जो है वो हुकूमत कर सकेगा और आगे मतलब सर्वाइव करेगा लाइफ में। हैमलेट और लियर्टिस दोनों इस चीज़ पर एग्री हो जाते हैं कि दे आर गोइंग टू हैव अ फेंसिंग मैच। अच्छा, उसके दौरान क्या होता है कि लिनियस का बेटा लियर्टिस वो स्वॉर्ड के टिप पे जो है पॉइजन लगा देता है, कि जैसे ही वो आपस में लड़ेंगे, अगर हिट करेगा वो हैमलेट को, तो क्या होगा, हैमलेट है फ़ौरन से मर जाएगा। और वहाँ पे एक कप ऑफ वाइन रखा गया जो कि जीतने वाले को दिया जाएगा। उस वाइन के अंदर क्लॉडियस क्या करता है, पॉइजन मिला देता है, कि अब पॉइजन मिला होगा जो हैमलेट इसको पी लेगा और हैमलेट मर जाएगा। वो चाहता है कि क्लॉडियस का जो है ना, पोलोनियस का बेटा लियर्टिस को मार दे, क्योंकि वो हैमलेट भी उसके लिए थ्रेट है ना अब लाइफ में आगे। स्टार्ट होती है लड़ाई। हैमलेट फर्स्ट हिट करता है लियर्टिस को, और उसकी खुशी में जो है क्लॉडियस कहता है कि ये लो तुम जाम पियो।
तो वो हैमलेट कहता है नहीं मैं अभी इसको नहीं पीऊँगा। उसके अंदर वो एक पर्ल डाल देता है कि तुम्हारी रिवॉर्ड है तुम्हारा कि तुमने उसको हिट किया 2 दफ़ा। तो वो कहता है नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट द टाइम टू ड्रिंक दिस वाइन, आई विल ड्रिंक इट आफ्टर मर्डरिंग हिम। तीसरी दफ़ा भी दोबारा वो हिट करता है और उस टाइम पीरियड पे क्या होता है, गर्ट्रूड वो उठा के पी जाती है वाइन के कप को, और जितनी देर में जो क्लॉडियस उसको रोकने लगता है वो उस चीज़ को पी चुकी होती है। और उसी दौरान जो स्वॉर्ड होती है ना, जिसके ऊपर स्वॉर्ड के ऊपर पॉइज़न लगी होती है, लेयर्टिस जो है वो हिट कर देता है हैमलेट को। हैमलेट की अब की बॉडी पॉइज़न हो चुकी है, ठीक है। अब दोनों के दरमियान बड़ी जो लड़ाई हो रही होती है ना, तो उसमें इन दोनों की जो तलवारें हैं वो गिर जाती हैं, और वो एक दूसरे से स्विच हो जाती हैं, यानी हैमलेट की लेयर्टिस के पास चली जाती है, जो है वो हैमलेट के पास आ जाती है, और हैमलेट भी उसको उसी स्वॉर्ड से मार देता है। और वो लेयर्टिस बताता है कि इस स्वॉर्ड पे, हैमलेट को बताता है कि इस स्वॉर्ड पे तो पॉइज़न था, तुम भी इसी स्वॉर्ड से हिट हो चुके हो और मैं भी, अब हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। उसी दौरान वो हैमलेट क्या करता है, उसी स्वॉर्ड से क्लॉडियस को भी मार देता है, उसको भी हिट कर देता है, ठीक है। बिकॉज गर्ट्रूड हैज़ डाइड आफ्टर ड्रिंकिंग द वाइन। क्लॉडियस को हैमलेट ने मार दिया, गर्ट्रूड ने वो जाम पी लिया जिसमें पॉइजन थी, तो अब वो सब ही वन वे और द मर जाते हैं। एट द एंड नॉर्वे से एक प्रिंस है जो कि वापस आता है बदला लेने के लिए, फोर्टेनब्रास उसका नाम है। तो जब वो यहाँ पहुँचता है डेनमार्क, तो वो देखता है कि ऑल द रॉयल फैमिली हैज़ डाइड। किंग क्लॉडियस मर चुका है, लेर्टिस मर चुका, पोलेनियस मर चुका, उसके अलावा हैमलेट भी मर चुका है, गर्ट्रूड भी मर चुकी है, कोई भी पीछे नहीं रहा, ठीक है। तो अब वो क्या है, ही बिकम्स द किंग ऑफ दैट प्लेस, ही टुक द किंगशिप ऑफ डेनमार्क। At the end, before dying, he says to Horatio, "Dad, you are the witness of all these things. You are now going to tell the people the truth about the murder of his father." And this was all about today's lecture. I hope you enjoyed this plot summary. We will talk about the tragic flaws of Hamlet in other video by making a full-fledged question on tragic hero. Till then, take care. Allah Hafiz.